تنقید کرنے والوں کی تنقید بھی سمجھ نہیں آتی. خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ساری ہیں. کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ پہلے تنقید پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک جب پی ایم ایل این ہوٹل کے اندر اراکین کو ٹھہراتی تھی تو تب تو لوگ کہتے تھے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور آج پی ٹی آئی نے بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرق ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اسلام آباد میں جن لوگوں کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا تھا ان کا تعلق پی ڈی ایم کی جماعتوں سے نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اپنے لوگوں کو ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرایا ہوا تھا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوٹوں کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہوا تھا. فرق سمجھ آیا؟ جب پنجاب کے اندر حمزہ شہباز نے ہوٹلوں کے اندر کمرے لیے تو انہوں نے 25-26 لوگ جو ٹھہرائے ہوئے تھے وہ ان کی اپنی جماعت کے نہیں تھے, نہ وہ لوگ ان کی اپنی اتحادی جماعتوں کے تھے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوٹوں کو اپنے خرچے پہ ہوٹلوں میں ٹھہرایا ہوا تھا. اس مرتبہ جو پاکستان تحریک انصاف نے ہوٹل کا خرچہ اٹھایا ہے تو تحریک انصاف اپنے ہی لوگوں کو بچا رہی ہے لوٹا بننے سے. یعنی تحریک انصاف نے نون لیگ کے لوگوں کو ہوٹل میں نہیں ٹھہرایا ہوا, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہوٹل میں نہیں ٹھہرایا ہوا. اس فرق کو سمجھیے, میرے خیال میں آسان ہو جائے گا. ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے اور فضل الرحمان نے جب لوگوں کو ہوٹل میں ٹھہرایا تو وہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں تھے, وہ دوسری پارٹی کے لوگ لوٹا بنا کر ٹھہرائے ہوئے تھے. اور آج ایک پارٹی لوگوں کو ہوٹل میں ٹھہرا رہی ہے صرف اس لیے کہ کوئی اور ان کو کسی اور ہوٹل میں نہ لے جائے اور لے جا کر ان کو لوٹا نہ بنا دے. ایک لوٹا بن گیا ہے مبینہ طور پہ 40 کروڑ روپے لے کر, اور وہ ترکی فرار ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اور بھی ہے, لیکن مال روڈ پہ جو ہوٹل ہے پی سی ہوٹل, وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ 186 کا ایک مجھے اطلاع آئی ہے, اور دوسری ایک اور کلیم کیا گیا ہے کہ 187 نمبر پورے ہو گئے ہیں. 187 اراکین اسمبلی پورے ہو چکے ہیں لاہور کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے اندر, اور یہ پرویز الہی کو ووٹ ڈالیں گے. بہت سارے لوگوں نے ایسے بیانات دیے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے اور پرویز الہی کو ہی ڈالیں گے, اور ان کو لالچ دی گئی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیلی فون کالز آئی ہیں. کچھ لوگ عطا تارڑ کا نام لے رہے ہیں, کچھ لوگ اور لوگوں کا نام لے رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ کر بتا رہے ہیں, سوشل میڈیا پر آ کر بتا رہے ہیں اراکین اسمبلی کہ ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. پچھلی مرتبہ جو لوٹا 5 کروڑ میں بکتا تھا اب وہ لوٹا 50 کروڑ میں بک رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک بنے ہوئے وزیر اعلیٰ کو بچانے کا معاملہ ہے. یعنی اگر کوئی 4-5 ارب روپیہ یا 6 ارب روپیہ خرچ بھی کرنا پڑ جائے تو ان لوٹوں کو خرید کر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھا جائے. اب لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی سودے بازیاں کلیم کر رہے ہیں. ایک رکن ہے نون لیگ کا, انہوں نے کلیم کیا کہ انہیں کاف لیگ نے خریدنے کی کوشش کی ہے. جھوٹ نہیں ہو سکتا, بہت ممکن ہے کہ یہ ہوا ہو. وجہ یہ ہے کہ شرک پوری بھی تو آئے ہیں نا یہاں پہ. اگر یہاں سے مسعود صاحب گئے ہیں تو وہاں سے شرک پوری بھی تو آئے ہیں, اور انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے. فیصل نیازی نے بھی استعفیٰ دیا ہے, اور ایک ڈی سیٹ رکن بھی ہوا ہے. نمبر گیم ذرا سمجھ لیں. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پاس ہیں وہ 188 ہیں, اور جو لوگ آزاد امیدواروں کو نکال کر چند کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ہیں ان کی تعداد 174 بنتی ہے. 2 آزاد ساتھ ملا لیں تو وہ 176 بن جاتے ہیں. ایک آزاد اور 2 اور ملا لیں تو آپ کے 176 بن جاتے ہیں. باقی لوگ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی کے اندر موجود ہیں, یعنی نثار علی خان صاحب اور ان کے علاوہ 2 آزاد امیدوار مزید اور ایک نیا آزاد امیدوار. یہ 4 لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہاں جانا ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن پی ٹی آئی نے کلیم کیا ہے کہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ان کے پاس 187 لوگ موجود ہیں. مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ جس وقت ووٹنگ ہوگی حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے معاملے پر یا پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے معاملے پر, انہوں نے کہا کہ جس وقت ووٹنگ ہو رہی ہوگی اس وقت کوئی 5-7 لوگ کم ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ یا تو آئیں گے نہیں یا وہ مستعفی ہو چکے ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں نقصان ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا اور پرویز الہی کا. لیکن کیا 5-7 لوگوں سے کام چلے گا؟ تو ایسا لگتا نہیں ہے, کیونکہ بہت بھی اگر آزاد سارے بھی ساتھ ملا لیں تو 179 سے اوپر نہیں جا سکتی پی ایم ایل این. 179 پہ آ کر ان کو لاک لگ جاتا ہے, اور اگر وہ ووٹ لے لیں چودھری نثار علی خان کا بھی اور سارے ہی ان کو مل جائیں تو وہ 180 تک جا سکتے ہیں. ابھی صرف ایک بندہ غائب ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, 7 مزید غائب ہوں تو 180 پہ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو کیا 8 لوگوں کو غائب کیا جا سکتا ہے؟ لوٹوں کی جو درگت بن رہی ہے, جو ان کے حالات ہیں, ایسے میں ایسا لگتا تو نہیں ہے. یہ مائنڈ گیم ہے. دس از کالڈ
आसाब की जंग, आसाबी तौर पे दुश्मन को शिकस्त देना, दुश्मन की सफ़ों में यह बताना कि तुम हार रहे हो, उनके लोग हिम्मत हार जाएं और लोग ये सोचें कि हार तो रही हैं तो क्यों ना 40-50 करोड़ रुपया लेके मैं भी निकल जाऊं पाकिस्तान से बाहर। हार तो जाना है, तो इसके अंदर अगर मैं कुछ कमा लूं, यानी मेरी पार्टी हार रही है तो मैं जीत जाऊं, कुछ मुनाफा ले लूं, तो इस किस्म की सिचुएशन पैदा की जा रही है बयानात देकर। आसिफ अली जरदारी का विक्ट्री साइन बनाना इसका हिस्सा है, यहां पे कहकों वाली मीटिंग करना इसका हिस्सा है, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट इसका हिस्सा है, अताउल्लाह तारड़ की कोशिशें या बाकी लोगों की जो मुबैना कोशिशें हैं वो इसका हिस्सा है सब कुछ। तो एक आसाब की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान में, जो आसाब की लड़ाई का मास्टर है, और वो ज्यादा देर तक इसमें रेजिस्ट कर सकता है और उसने साबित किया है, बार बार साबित किया है, वो इमरान खान है। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो आसाब की जंग के सबसे बड़े प्लेयर हैं, वो आज ही के दिन वापस पहुंच रहे हैं लाहौर, और वो इस लड़ाई को आकर खुद लड़ेंगे, क्योंकि अगले जो 24-30 घंटे हैं, लगभग 30-35 घंटे हैं, वो बड़े अहम हैं। ये जो 30-35 घंटे हैं, ये पंजाब के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। इन 35-36 घंटों के अंदर, जितने भी ये 30 से 36 घंटों के बीच का टाइम है, इन घंटों के अंदर आसाब की एक जंग लगेगी, और उस जंग को लड़ने के लिए इमरान खान साहब ने खुद लाहौर आने का फैसला किया है। पहले उनको कराची जाना था, लेकिन कराची में एक नई डेवलपमेंट होगी, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। वहां पे सारी पार्टियां इलेक्शन से ही भाग गई। इमरान खान का खौफ इतना तारी हुआ और जो इबरतनाक शिकस्त उन्होंने लोटों की पंजाब में देखी, तो कराची और हैदराबाद के इलेक्शन से सारी पॉलिटिकल पार्टीज भाग गई। MKM, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें, उन्होंने कहा ये तो कराची और हैदराबाद हमसे छीन लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो इनसे बचें कैसे? तो बचने का जो वाहिद रास्ता था वो यही था कि इलेक्शन से ही भाग जाओ। जैसे वफाकी हुकूमत इस वक्त इलेक्शन से भागना चाहती है, PDM की सारी जमातें इस वक्त इलेक्शन से भागना चाहती हैं, ऐसे ही वो इलेक्शन से भाग गए कराची में। वो खबर मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन शाहीन सभाई साहब ने एक दावा किया है, उनके मुताबिक ताकतवर हलकों ने आसिफ अली जरदारी को थपकी दी है और उन्हें कहा है कि हमजा शहबाज को बचाने के लिए कोशिश करें, कहीं ना कहीं से बरकत पड़ जाएगी। यानी इस किस्म का उनका जो लुब्बे लुबाब है, मैं आपको बता रहा हूं, वो तो नाम लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझे कि ताकतवर हलकों ने आसिफ अली जरदारी को थपकी दी है कि जाओ पंजाब में और जाकर PMLN को रोको कि इस्तीफे ना दें, वरना हमजा शहबाज तो जान छोड़ के, और ऐसा लगता था शरीफ खानदान के लोग भाग जाएंगे। और ये शाहीन साहब भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग और शरीफ खानदान भागने के लिए तैयार था, लेकिन आसिफ अली जरदारी को थपकी दी गई है कि वो जाएं पंजाब में और जाकर मामलात को चलाने की कोशिश करें, हालात कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में एक चीज़ और भी है, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ख्वाब देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है, और वो तभी हो सकता है जब PMLN बहुत कमज़ोर हो जाए। एक इत्तेहादी हुकूमत में ही बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन नून लीग के कमज़ोर होने की सूरत में, नून लीग तगड़ी होगी तो फिर उनका वज़ीर आज़म आएगा, जैसे शहबाज शरीफ आए। तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नून लीग को कमज़ोर करना है। जरदारी साहब लगातार वो किरदार अदा कर रहे हैं। जरदारी साहब ने नून लीग की वो हालत कर दी है कि ना उसको जिंदों में छोड़ रहे हैं ना मुर्दों में, बेड़ा गर्क करके रख दिया एक पॉलिटिकल पार्टी का, और खुद नहीं कर रहे, उन्हीं से करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। और इस वक्त तक जो जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं, उनकी ये जो आमद है ना, वो देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नून लीग की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लाहौर आए हैं, और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि नून लीग को वो अपने हाथों से दफन करके जाएं। लेकिन ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। सिर्फ इनको फैसला ये करना है कि ये अपनी क़यादत के बच्चों का गंद और कितनी देर तक उठा सकते हैं, यानी कितनी देर तक अपने जो कायदीन हैं उनके बच्चों का बोझ अपने कांधों पे ढो सकते हैं, कब तक ये अपने लीडर्स के जो बच्चे हैं उनका फैलाया हुआ गंद साफ करते रहेंगे। ये फैसला नून लीग ने करना है। जिस वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि नून लीग खुद अपनी लीडरशिप चुनेगी और नए लीडर्स आएंगे और ये पार्टी आगे बढ़ेगी, तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त पार्टी है। मेरे बहुत ज़्यादा इस पार्टी में दोस्त हैं, बड़े ज़ीरक लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन ख़ानदान से बाहर मौका नहीं मिलता। और ख़ानदान के अंदर जो बच्चे हैं वो इंतहाई नालायक हैं, उनको कुछ समझ नहीं, हाथ मिलाने तक की तमीज़ नहीं है। तो इस तरह के लोगों को कैसे क़यादत के अंदर जो है मौका मिलता रहेगा और कैसे वो पार्टी को संभालेंगे, मेरे दिमाग में तो हमेशा यही एक सवाल पैदा होता रहता है। अब इमरान खान साहब खुद लाहौर पहुँचेंगे, इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, अपने MPs को बकअप करेंगे, और इसके अलावा कुछ 2 लोग जो हैं वो आज़ाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही की तरफ जाना चाहते हैं।
अगर ये दो आदाद आप और मिला देते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 188 वो थे, एक भाग गया, 187 रह गए, और अगर ये दो और साथ मिल जाएं तो 189 पे ये फिर पहुंच जाएंगे। तो बड़े आराम से पहले झटके में परवेज इलाही 186 वोट हासिल कर लेंगे और हमजा शहबाज को बाहर कर देंगे। लेकिन अगर पहली काउंटिंग में 186 वोट फर्ज करें परवेज इलाही ना ले सके तो फिर फौरन दोबारा काउंटिंग होगी और उसमें हमजा शहबाज और परवेज इलाही में से जो ज्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। हमजा शहबाज 176 177 पे रुके हुए हैं, वो बहुत भी छलांग मारेंगे तो 179 से ऊपर नहीं जा सकते, और परवेज इलाही बहुत भी गिरेंगे तो 180 से नीचे नहीं गिर सकते। इस सूरत में भी वो वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। अब जो खबर है दूसरी वो ये है कि इमरान खान साहब के डर से सिंध के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाब सब मुलतवी कर दिए हैं, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है बारिश होने वाली है कराची में। फिर उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम आ रहा है कराची में, यानी हज की वजह से ये इंतखाबात मुलतवी करवाने पर तैयार नहीं थे। हज मुसलमानों का सबसे बड़ा इवेंट है, उससे बड़ा कोई और इवेंट नहीं है। इसके बावजूद इंतखाबात मुलतवी नहीं करवा रहे थे। पंजाब में बेहतरीन बारिशें हो रही थी, इसके बावजूद इंतखाबात मुलतवी नहीं करवा रहे थे। कीचड़ के अंदर खड़े होकर लोगों ने जलसे अटेंड किए हैं, टखनों से ऊपर ऊपर पानी के अंदर लोग खड़े हुए थे, औरतें भी बच्चे भी, फिर भी इलेक्शन मुलतवी नहीं किए। लेकिन कराची में बारिशों के डर से इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी बारिशों के डर से इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे। ये इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं इमरान खान की मकबूलियत के डर से। यानी अगर आप डाटा देखें तो हैदराबाद में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से ज़्यादा उम्मीदवार पीटीआई ने खड़े किए हैं। डाटा देखें तो कराची में भी सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जिस पॉलिटिकल पार्टी ने खड़े किए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सबसे ज़्यादा तैयारी भी इनकी थी और सबसे ज़्यादा जीतने वाले भी यही थे। लेकिन इसके बावजूद जब ये जीत रहे थे, जब नज़र आ रहा था तो इलेक्शन से फरार वाहिद रास्ता था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको ये रास्ता फराहम कर दिया, और अब 24 जुलाई के बजाय इलेक्शन जो है वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में चले जाएंगे। 1 महीना डिले किया है, लेकिन जहां मर्जी भाग जाएं अल्टीमेटली आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जो आमिर लियाकत हुसैन की सीट खाली थी उसके ऊपर भी इंतखाब था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से। अब आ जाए एक और खबर की तरफ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस इंपोर्टेड सरकार ने। जो डॉलर की सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूं, कामरान खान साहब की ट्वीट से आप देख लें। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब किसी बैंक से चेक कर लें, डॉलर की सरकारी कीमत 226 रुपए है। ये सिर्फ टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर महदूद है। दरअसल कोई बैंक अब एलसी किसी सूरत 234 रुपए से कम में फाइनल नहीं कर रहा, यानी 234 रुपए से कम के अंदर एलसी फाइनल नहीं हो रही। बैंक के जरिए जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आप ट्रेड करते हैं बाहर मुल्कों के साथ, तो उसके लिए आपको एलसी खोलनी पड़ती है। वहां पे जो डॉलर का रेट हो रहा है, ये मार्केट के अंदर तो वैसे ही 226 रुपए कह रहे हैं इंटरबैंक, लेकिन क्योंकि सूरत हाल इतनी खराब है कि 234 रुपए से कम में कोई बैंक तैयार नहीं हो रहा और इतना पैसा आपको भरना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 241 और 242 रुपए का भी मिल जाए ना, तो यह बहुत बड़ा कारनामा है। ये बात बताई है कामरान खान साहब ने, और बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए 242 रुपए फी डॉलर डिमांड कर रहे हैं। ये और बढ़ गया है। शहबाज गिल ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 242 रुपए फी डॉलर डिमांड कर रहे हैं बैंक इस वक्त, और एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट इसको कहते हैं, एलसी के लिए। और खाम माल नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो जाएगी। महंगाई 45% तक पहुंच रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब पहुंच गया खुदा ना खास्ता। और ये इंपोर्टेड सरकार इस वक्त भी ना इकोनॉमी को देख रही है, ना डॉलर को देख रही है, ना एक्सपोर्ट्स को देख रही है, ना इंपोर्ट्स को देख रही है, ना टैक्स कलेक्शन को देख रही है, ना पाकिस्तान को देख रही है, ना गवर्नेंस को देख रही है। इनकी सारी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि किस तरह से इमरान खान का रास्ता रोका जाए और किस तरह से हमजा शहबाज को पंजाब के अंदर वजीर आला की सीट के ऊपर बरकरार रखा जाए। और ताकतवर हल्कों के लिए सवाल है कि उनको तो लगता था इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो जाएगी इनके आने के बाद। यह तजर्बा किया, पाकिस्तान के साथ बेड़ा गर्क करके रख दिया। हालत पाकिस्तान की यह कर दी है कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। यह वो मुल्क है जो आज से चंद महीने पहले तक लगातार 2 सालों में 6% के ऊपर ग्रोथ कर रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ माजी में। 20 साल की बेहतरीन कारकर्दगी चल रही थी और 3-4 माह के तजुर्बा के अंदर अंदर पाकिस्तान की यह हालत कर दी कि डॉलर की कीमत, यानी वो लोग जो मातम करते थे 140 रुपए का डॉलर जब हुआ था तब जो मातम करते थे, आज 240 रुपए के ऊपर मातम नहीं कर रहे, बात करने को तैयार नहीं है उसके ऊपर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इंपोर्टेड सरकार नवाजती है,
یا امپورٹڈ سرکار سے وہ فائدے ملتے ہیں جو فائدے آپ کو عمران خان نہیں دیتا تھا. تو ناظرین یہ صورتحال بن چکی ہے. یہ 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے, لگ بھگ 24 سے 30 گھنٹے, اور ان میں عمران خان صاحب کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوگا. لوٹوں کے لیے اب پاکستان میں جگہ نہیں ہے, یہ اب نظر آ رہا ہے. جو لوٹا بنے گا پاکستان سے بھاگے گا. اس ملک کے اندر وہ اپنے آپ کو نہیں روک پائے گا.